Yes, good evening, everyone. I think everybody has joined. We will wait for 1 more minute and then I will start. Okay. Okay, Bacho. So yesterday we have seen this part, that oxidation of alcohol. I think you have not written this, right? Oxidation of alcohol. Primary alcohols on oxidation gives you aldehyde, which on oxidation gives you acid. Secondary alcohols on oxidation gives you ketone. Ketone on oxidation gives you acid. Is it right? So please note down this part first, then I will give you a proper reactions. Please note down this. Have you all written this yesterday? नहीं ना, हाँ लिखो. Okay. No, No, ma'am. ma'am. Write down. Okay, write down. Oxidation of alcohol. First degree means primary alcohols. Okay. Primary alcohols on oxidation gives you aldehyde. Aldehyde will give you acid. Secondary alcohols will give you ketone. Ketones will give you acid. इतना लिखो, ये 2 लाइन. अभी फिर से कैमरा ऑन करने के लिए सबको बोलने का. तुम लोग का क्या है रे, मतलब मेरे को समझ में ही नहीं आता, इतने अजीब कैसे हैं तुम लोग. जिस दिन मिले ना मेरे को, देखो एक एक का ना मैं मुंह ही तोड़ दूंगी. रोज बोलते रहने का अपना थोबड़ा दिखाओ, एकदम शाहरुख खान हो गए सब लोग तो अभी. ओके डन, गुड. ठीक है, चलो नाउ आई विल टेल यू नेक्स्ट रिएक्शन. दैट इज, for this we need oxidizing agent, right? So primary alcohol undergoes dehydrohalogenation and secondary alcohol will also undergo into the dehydrohalogenation. So how the reaction takes place, see, we are writing here R CH R dash OH. Is it your secondary alcohol CHOH? This is your secondary alcohol. Okay, I am going to use here a very strong oxidizing agent called as chromium oxide CrO3 in presence of oxygen. अभी हमने पहले क्या किया था, ketone gets converted into CHOH. अभी इसको किस में convert कर देंगे directly? I'm going to convert it to R C double bond O R dash. मतलब immediately secondary alcohol gets converted into the ketone. First part is very clear. This is your ketone, right? Okay. Now, primary alcohol with
CrO3 forms aldehyde. So we are going to use here a better oxidizing agent. There is one more oxidizing agent called as PCC. PCC stands for pyridinium chlorochromate. ठीक है, pyridinium chlorochromate, PCC, pyridinium chlorochromate, right? So what I will do here, I can use here this catalyst also. See, you can use this also, you can use PCC also. तो PCC लिखा रहता है तो बच्चे पूछते हैं मिस ये क्या है? So it is CH2OH called as primary alcohol. So it is PCC in presence of oxidation. Now this primary alcohol gets converted into aldehyde, RCHO. Is it very clear? Correct? So this is your different oxidizing agent which you can use. अभी एग्जाम में आपको PCC और O दिया तो कंफ्यूज नहीं होना है. These are oxidizing agent only. एक बार आपको पता है 4 मार्क्स के लिए PCC का फुल फॉर्म पूछा था. एक होता है PDC. PDC is pyridinium dichromate और ये PCC means pyridinium chlorochromate. ठीक है? So primary alcohols will give you aldehydes on oxidation. Secondary alcohols will give you ketones on oxidation. Other oxidizing agents which you can use here is, other oxidizing agent is, what is this? HNO3 nitric acid. Okay. Potassium permanganate, that is KMNO4, very strong oxidizing agent. Or potassium chromate, sorry, potassium dichromate. So K2Cr2O7. These are the different oxidizing agents which you can use over here. ठीक है? अभी यहाँ पे क्या बोला है कि when you are going to use primary alcohol, it will not stop the reaction at aldehyde. Correct? It will lead to the formation of acid. Secondary alcohol में तो वो stop हो जाएगा, but in the case of primary alcohol, it will not stop if you use this. So I'm going to write down here RCH2OH. That is your primary alcohol. ठीक है? In presence of any of these catalysts. So I'm writing all the names. Either you can use KMNO4 or you can use K2Cr2O7, that is potassium dichromate, or you can use nitric acid in presence of oxidation. तो आपका first step क्या होगा बच्चों? It will first form primary alcohol to aldehyde. ठीक है? And aldehyde on oxidation gives you acid. So अब ये aldehyde को किस में convert कर देंगे? COOH में. So it is called as carboxylic acid. समझा? Is it very clear? Now tertiary alcohol are very difficult to oxidize. Even they are not going to oxidize. They will oxidize under a very higher temperature, and CC bond gives a mixture of different carboxylic acid which are very difficult to separate with each other. तो वो मैं बाद में लिख के देती हूँ कि why tertiary alcohols are very difficult to oxidize. Is it very clear to everybody? Yes or no? What I said, you can use CrO3 also, you can use PCC also, you can use PDC also, you can use nitric acid, you can use potassium permanganate, you can use potassium dichromate, any of these reagents you can use. So secondary alcohol will give you ketone and primary alcohols will give you aldehydes, correct? और अगर आपने ऐसे किया तो what I said, primary alcohol will not stop at aldehyde. Aldehyde के बाद it will give you acid also. Is it very clear? And tertiary alcohols are very difficult to oxidize because on oxidation with a very strong agent at a very higher temperature, it undergoes in the breaking of CC bond. Carbon-carbon bond टूट जाता है and you will get the mixture of different carboxylic acids जो बहुत ही difficult है separate करना. That is why we are not going to do the oxidation of tertiary alcohols by this method. Clear? Please copy down this much part first of all. PDC is pyridinium dichromate. अगर चाहिए तो इसका फुल फॉर्म भी मैं बाद में लिख के देती हूँ. PCC और PDC. PDC is called as pyridinium dichromate. यहाँ पे क्लोरोक्रोमेट लिखा है ना, उसकी जगह क्या लिखेंगे? डाइक्रोमेट. Can you see this properly बच्चों? यहाँ पे लिखती हूँ other oxidizing agents used are. ठीक है? Please note down this. If you have any question, please feel free to ask. Any doubts, any questions? सबको समझ में आया what I said just now? Okay.
अभी मैं आपको इसके ऊपर क्वेश्चन देती हूँ थोड़ी देर में, तो आप लोग कंप्लीट करो। ओके, आई थिंक इट इज डन। यहाँ तक हो गया सबका? ओके, चलो यस ये मैम। नीचे वाला रिएक्शन भी लिखो फटाक से। प्राइमरी अल्कोहल KMnO4 लिखा है मैंने, पोटेशियम पर मैंगनेट K2Cr2 7 इज कॉल्ड एज पोटेशियम डाइक्रोमेट। आता है ना नाम के, लिख के दो सबका नाम फुल फॉर्म। PDC का फुल फॉर्म क्या है बोलो? पिरिडीनियम डाइक्रोमेट। ये सब बहुत बेहतर रिड्यूसिंग एजेंट्स है। क्रोमियम ट्राइऑक्साइड वेरी स्ट्रॉन्ग, PCC उससे भी स्ट्रॉन्ग, PDC स्ट्रॉन्ग, HNO3, KMnO4, K2Cr2O7, all these are very very strong oxidizing agents. Okay. ओके डन एवरीबॉडी। किसी को कुछ डाउट है यहाँ तक? कुछ क्वेश्चन? एनीथिंग विच यू डिड नॉट अंडरस्टैंड? मैम हाँ ये सदती। मैम अल्डेट का कार्बोक्सिलिक एसिड कैसे हुआ वो एक बार बताइए। सी मैं बताती हूँ क्या होता है, देखो दिस इज विच ग्रुप? प्राइमरी अल्कोहल CH2OH, राइट? अल्कोहल, प्राइमरी अल्कोहल इमीडिएटली कन्वर्ट्स इनटू एल्डिहाइड। अभी एल्डिहाइड में भी क्या होता है? यू हैव टू डू द सेम थिंग, ये सेम ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यू आर गोइंग टू ऐड हियर, मतलब दिस इज ऑल्सो एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। यहाँ पे कोई भी यूज करो, यू कैन यूज PCC, you can use PDC. So what they have said, this reaction will not stop here, it will lead to the formation of acid. तो ये जो एल्डिहाइड ग्रुप है, it will get converted into the एसिडिक ग्रुप। तो ये जो एक ऑक्सीजन है वो यहाँ पे अंदर घुस जाता है। आई हैव नॉट रिटन हियर क्योंकि ये रिएक्शन कंटिन्यूएशन में होता था, इसलिए मैंने यहाँ पे ऑक्सीजन ऑक्सीजन नहीं डाला, ठीक है? बट बेसिकली इट विल गिव यू एसिडिक ग्रुप जस्ट बाय एडिशन ऑफ दिस ऑक्सीजन। अभी समझा? यस मैम। ओके, एनी अदर क्वेश्चंस बच्चों? एनी अदर डाउट्स? ओके, चलो अभी राइट डाउन द स्टेटमेंट। अभी इस मेथड से इट इज वेरी डिफिकल्ट टू ऑक्सीडाइज द टर्शरी अल्कोहल। एक्चुअली इससे नहीं, बाकी सारे मेथड से भी, बिकॉज टर्शरी अल्कोहल्स विल गिव यू अल्कीन्स, नॉट एल्डिहाइड्स, नॉट एसिड, ठीक है? सो दैट वी विल राइट डाउन लेटर ऑन। ये हो गया, चलो लिखो, राइट डाउन द स्टेटमेंट। राइट डाउन द स्टेटमेंट। टर्शरी अल्कोहल्स, टर्शरी अल्कोहल्स कैसे लिखते हैं? थर्ड डिग्री। पुलिस वालों की थर्ड डिग्री नहीं है, थर्ड डिग्री। थर्ड डिग्री अल्कोहल्स or tertiary alcohols, whatever you want to write, you can write it. Tertiary alcohols are difficult to oxidize. Tertiary alcohols are
difficult to oxidize, full stop. On oxidation with strong oxidizing agents, on oxidation with strong oxidizing agents at high temperature, on oxidation with strong oxidizing agents at high temperature, tertiary alcohols undergoes breaking of CC bonds, and gives a mixture of carboxylic acids containing less number of carbon atoms, then the starting tertiary alcohol. मतलब if I'm going to use my tertiary alcohol with the 5 carbon atoms, ठीक है, तो मुझे यहाँ पे क्या मिल गया? Acid, different, एक तो पहली चीज तो different mixtures of acids you will get, and secondly it is giving you a less number which we are using starting में, ठीक है? So this is the main part. एक बार repeat करती हूँ मैं पूरा. Tertiary alcohols are difficult to oxidize. On oxidation with strong oxidizing agents at high temperature, tertiary alcohols undergoes breaking of CC bonds and gives a mixture of carboxylic acids containing less number of carbon atoms than the starting tertiary alcohols. ठीक है? Now we can use one more reagent over here, heating with copper. ठीक है? We are going to use heating with copper. अभी यहाँ पर आप क्या करोगे? We are going to take the vapors of different alcohols. मतलब directly liquid नहीं लोगे आप. What you are going to take? Various types of alcohols passed over vapors. ठीक है? Vapors of various alcohols. ठीक है? Are passed over hot copper. Are passed over hot copper metal. मतलब आप क्या करोगे? एक छोटा सा कॉपर का टुकड़ा लिया and then you are going to pass the vapors of your different alcohols. तो यहाँ पे भी होती same चीज ही है, only the reagent is changed. So just tell me which alcohol it is, primary, secondary or tertiary? Primary. Very good, perfect. It is primary alcohol. अभी पहचानने आता है ना तुम लोग को सब? Primary alcohol is CH2OH. सिर्फ करना क्या है हमें? We are going to pass this over copper metal at the temperature of 573 Kelvin. This process is called as oxidation. तो वापस से क्या होगा? Primary alcohol gets converted into aldehyde, CHO. क्या मिला मुझे? Aldehyde. Same चीज, ठीक है? Then I will take here secondary alcohol, CHOHR dash. I am going to pass this secondary alcohol का vapor over 573 Kelvin and oxidation. Secondary alcohol किस में convert हो गया? ketone में. तो R C double bond O R dash. It is called as ketone. समझ रहे हैं बच्चों? This is called as secondary alcohol. ठीक है? Then I am going to take here
another example called as tertiary alcohol. तो मैं यहाँ पे लिखती हूँ ऐसे CH3COH again CH3CH3, ठीक है। तो ये हो गया आपका बच्चों कॉपर 573 केल्विन। अभी यहाँ पे ऑक्सीडेशन नहीं होगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा पता है, इट विल अंडरगो इनटू द डिहाइड्रेशन। बोलो व्हाट डू यू मीन बाय डिहाइड्रेशन? एक सेकेंड ना बच्चों। ओके बच्चों, सो आई एम गोइंग टू डू हियर डिहाइड्रेशन। डिहाइड्रेशन मींस रिमूवल ऑफ वाटर। यहाँ से OH निकाला, यहाँ से क्या निकालेंगे H। सो वी आर गोइंग टू राइट डाउन हियर CH3C अगेन CH3। यहाँ पे क्या हो जाएगा अभी डबल बॉन्ड CH2। इज इट वेरी क्लियर? प्लस H2O। समझा? सो दिस इज योर टर्शरी अल्कोहल, दिस इज कॉल्ड एज टर्शरी अल्कोहल। एक सेकेंड ना। दिस इज कॉल्ड एज टर्शरी अल्कोहल। तो यहाँ से OH जाएगा, यहाँ से H जाएगा, डबल बॉन्ड विल शिफ्ट हियर, सो इट विल गिव यू अल्कीन। अंडरस्टूड? समझा? सो क्या बोला है यहाँ पे, देखो बेसिकली मुद्दा तो यही है कि प्राइमरी अल्कोहल्स विल गिव यू एल्डिहाइड्स, secondary alcohols will give you ketone, and tertiary alcohols will undergo into the dehydration to give you alkene. हो गया? Clear? Is this very very clear to everybody? चलो लिखो पटक से। Heating with copper. Okay. किसी को कुछ नहीं समझा है, कुछ डाउट है, प्लीज पूछ लो बिंदास। ऊपर करूँ क्या बच्चों? I'll just hold it like this. देखो ये ध्यान रखना है, इसको अंडरलाइन करना। दिस इज ऑक्सीडेशन, बट दिस इज डिहाइड्रेशन। डिहाइड्रेशन मीन्स रिमूवल ऑफ वाटर। ओके, आई एम सॉरी। हाँ बच्चों, मैं आप लोगों का पेपर चेक नहीं कर पाई फिलहाल, बिकॉज मेरे डैड की तबीयत थोड़ी ठीक नहीं है, सो बिकॉज ऑफ दैट आई कुड नॉट चेक योर पेपर्स, बट डेफिनेटली आई विल चेक एंड सेंड इट टू यू वेरी सून, 2-3 डेज में। और प्रांजल, वो तुमने नीट का पूछा था ना, मैं एक्चुअली हॉस्पिटल में थी वो टाइम पर। नीट एक ही बार हाँ। होता है, JEE 2 बार होता है। सॉरी, अच्छा, मैंने ओके। वो सब, हाँ एकदम वो घाई घाई में पढ़ा मैंने वो मैसेज, तो मैंने उसमें मुझे JEE ऐसा लगा कि तुमने JEE पूछा है, क्योंकि सुबह नहीं, से मेरे को सब लोग, का पूछा। हाँ हाँ ओके ओके। आई दैट टाइम आई वाज इन द हॉस्पिटल। नीट एक ही बार होता है, JEE ट्वाइस होता है। ओके, मीन्स एक बार, मीन्स 12th के बाद एक ही बार दे सकते हैं कि बाद में भी दे नहीं वो सकते तो हैं? कितने बार भी दे सकते हैं, वो एक एज लिमिट होता है फॉर ओपन। आई थिंक देयर इज सम एज लिमिट, बट इफ यू आर इन द कास्ट देयर इज नो एज लिमिट, ऐसा है। हाँ, तो मैं दे वही सकते पूछ हो, रही थी कि एक ही बार दे सकते हैं या कितने भी बार दे सकते हैं, सेम हाँ सेम? दे सकते हैं बाद में, लेकिन एक एज लिमिट तक दे सकते हैं। इफ यू आर इन द ओपन यू कैन गिव अप टू सम एज लिमिट, शायद कुछ 25 साल या 22 साल ऐसे कुछ रहता है, वो देखना पड़ेगा हाँ, जरा। मीन्स मेरे को क्या पूछने का था कि अगर हम लोग ने फर्स्ट अटेम्प्ट में नहीं अच्छा कर तो पाए सेकेंड अटेम्प्ट या तो? थर्ड अटेम्प्ट दे सकते हैं क्या? यस यस यू कैन गिव, हाँ, वैसे यस हाँ। यस यू कैन गिव, मैम राइट राइट। मेंस भी दे सकते हैं, मतलब कितने बार भी? कितने भी बार नहीं, उसका एक एज लिमिट रहता है। अभी तेरा अच्छा। ग्रेजुएशन हो जाएगा सपोज, और तू 12वीं का हम्म, नीट देगा, तो तेरे को अलाउड नहीं करेंगे ना, क्योंकि ग्रेजुएशन किया मतलब तूने फिजिक्स और केमिस्ट्री बहुत हायर लेवल का पढ़ लिया। तो ये 12th वाला मतलब एकदम लल्लू हो गया ना तेरे लिए, समझा? तो इसके लिए वो शायद 1 या 2 बार दे सकते हैं, ऐसा कुछ है, उसमें एक एज लिमिट रहती है। ग्रेजुएशन अप टू ग्रेजुएशन के एज तक नहीं दे सकते, समझा? चलो हो गया क्या बच्चों? डन?
यस मैम, डन। हाँ, अभी एक क्वेश्चन है तुम लोग के लिए, तुम लोग को ढूंढना है कि विच कंपाउंड इट इज। रेडी फॉर द क्वेश्चन? ये सब देख लिया, पीसीसी, पीडीसी, ठीक है। आपको याद है कि अल्कोहल रिएक्ट विद सोडियम आल्सो एंड लिबरेट्स हाइड्रोजन गैस। डू यू रिमेंबर? सोडियम अल्कोक्साइड बनाता है, सोडियम इथॉक्साइड, सोडियम मिथॉक्साइड, सोडियम प्रोपोक्साइड, ठीक है। चलो उसके ऊपर ये क्वेश्चन है। रेडी फॉर द क्वेश्चन? मिस राइट ऑन द क्वेश्चन। हाँ, ओके, डन डन। ओके। लिखो क्वेश्चन। एन ऑर्गेनिक कंपाउंड, ये नीट का क्वेश्चन है, 4 मार्क्स का। एन ऑर्गेनिक कंपाउंड, an organic compound gives hydrogen on reaction with sodium metal. An organic compound gives hydrogen on reaction with sodium metal, on reaction with sodium metal, full stop. It forms an aldehyde. It forms an aldehyde having molecular formula C2H4O. Okay, I will repeat the question. An organic compound gives hydrogen on reaction with sodium metal. मतलब एक compound है which will liberate hydrogen gas when it is reacting with the sodium metal. Full stop. It forms an aldehyde. ये aldehyde का formula है, ठीक है। It forms an aldehyde having molecular formula C2H4O. On oxidation with PCC. What is PCC? अभी लिखा ना आपने, pyridinium chlorochromate. Name the compound which gives these reactions. Name the compound which gives this reaction. ठीक है, 5 मिनट मिलेगा आप लोग को, ट्राई करो, सोचो और जवाब दो। मतलब एक ऐसा कंपाउंड है, देर इज सम कंपाउंड विच ऑन ट्रीटमेंट विथ सोडियम लिबरेट्स हाइड्रोजन। और भी कुछ कंपाउंड बनाता होगा, बट वो बोला है कि हाइड्रोजन लिबरेट करेगा। एट द सेम टाइम दे सेड एक कंपाउंड है जो पीसीसी के साथ रिएक्ट करता है, ऑक्सीडेशन देता है, एंड इट इज गिविंग यू C2, क्या लिया, सॉरी क्या था, C2H4O। तो पूछा है कि ये कौन सा कंपाउंड है। क्वेश्चन समझा? यस, सो हम करेक्ट, सो हमने आंसर दे दिया। थोड़ा दिमाग चलाओ, अपने को वो एल्डिहाइड दे रहा है, तो कौन सा वो रहेगा? वो यहाँ पे ऑक्सीडेशन कौन देता है? अल्कोहल देता है ना। विच अल्कोहल इट वुड बी? सर्जरी तो हो नहीं सकता, इट विल बी प्राइमरी और सेकेंडरी। एल्डिहाइड कौन सा कंपाउंड देता है? प्राइमरी अल्कोहल देता है, सेकेंडरी अल्कोहल देता है? प्राइमरी अल्कोहल देता है, बराबर। और यहाँ पे C2 दिया हुआ है, मतलब यहाँ पे अल्कोहल के पास कितना कार्बन रहेगा? सेम कार्बन रहेगा ना। तो ढूंढो अभी अल्कोहल। यस, करेक्ट तन्मय, परफेक्ट, वेरी गुड। समझा क्वेश्चन कितना इजी था? देखो, दे हैव सेड एल्डिहाइड। एल्डिहाइड कौन देगा? प्राइमरी अल्कोहल। टर्शियरी अल्कोहल का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। सेकेंडरी अल्कोहल गिव्स यू कीटोन, तो अल्कोहल देगा, ठीक है। यहाँ पर कितना कार्बन है? 2, तो मेरा स्टार्टिंग मटेरियल भी 2 ही रहता है। तो C2 वाला कौन सा अल्कोहल आता है? सबके आंसर्स मुझे चाहिए चैट बॉक्स में फटाफट। यस, करेक्ट, सबने एकदम परफेक्ट आंसर दिया। आंसर इज इथेनॉल, CH3CH2OH। परफेक्ट, वेरी गुड सिद्धेश। समझ गया सबको? देखो कितना इजी था। दिस वाज फॉर 4 मार्क्स। और आपके जो टेक्स्ट बुक में ना, इन वो प्रॉब्लम्स में भी दिया हुआ होता है ना, वो सारे नीट और JEE में पूछे हुए क्वेश्चन ही रहते हैं, तो वो सॉल्व करने का। देखो क्या बोला है, सोडियम के साथ रिएक्ट करेगा जब ये, तो व्हाट इट विल फॉर्म? C2H5ON है ना, सोडियम इथॉक्साइड प्लस हाइड्रोजन गैस लिबरेट करता है, याद आ गया? हाइड्रोजन गैस ये लिबरेट करता है, एंड इट इज रिएक्टिंग विद दिस टू गिव यू दिस फॉर्मूला। तो ये क्या रहेगा अपने पास? इट विल बी C2H5OH रहा होगा, तभी तो ये हम लोग को एल्डिहाइड देगा।
Clear? So answer is ethanol. The compound is ethanol. Answer write down. The compound is ethanol. हो गया? कुछ डाउट है? तो यहाँ पर we have done with the reactions of alcohols. अभी हम पढ़ेंगे reactions of phenols. Ready? चलो, pay attention. किसी को डाउट है इसमें? Any questions? अदिति, साक्षी, उर्मिल, गोम्स, आशीष, हिनल, निश्चल, तन्मय, प्रणव, क्लियर है मैम। क्लियर है मैम। श्रेया, सोहम, वैष्णवी, अपूर्वा, क्लियर? चलो, जिनका नाम नहीं भी लिया वो लोग भी रिप्लाई कर सकते हैं। ओके, चलो नेक्स्ट विल स्टार्ट विद द रिएक्शंस ऑफ फिनॉल्स। नो, यू विल एंजॉय इन द रिएक्शंस ऑफ फिनॉल्स, क्योंकि अल्कोहल के रिएक्शन से काफी इजी है। राइट डाउन फर्स्ट पॉइंट, लिखो फर्स्ट पॉइंट, और जो भी पॉइंट्स मैं लिखा रही हूँ उसको एकदम स्टार मार्क करना। ऑल दीज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। राइट डाउन phenols undergoes electrophilic substitution reactions more readily as compared to benzene. Phenols undergoes electrophilic substitution reactions more readily as compared to benzene. तो मुझे बताओ, उसके ऊपर अगर इलेक्ट्रोफाइल अटैक कर रहा है तो आपका जो फिनॉल है वो इलेक्ट्रोफाइल है वो या न्यूक्लियोफाइल है? व्हाट इट विल बी? मैम कैन यू रिपीट? हाँ, I asked the question. If your electrophile is attacking on your phenol, so what will be the nature of the phenol? It is electrophile or it is nucleophile? Phenol का nature क्या होगा? करेक्ट, बराबर बोला तन्मय ने। थोड़ा सोचो ना, एसिड होगा तो क्या मैं एसिड से रिएक्ट कर सकती हूँ? नहीं ना? यस, करेक्ट। सो बेस होगा तो क्या हम बेस से रिएक्ट कर सकते हैं? नहीं। तो अगर मैं इलेक्ट्रोफाइल है, इलेक्ट्रोफाइल अटैक कर रहा है, तो वो खुद कंपाउंड इलेक्ट्रोफाइल रहेगा क्या? नहीं ना? दैट कंपाउंड विल बी न्यूक्लियोफाइल, तभी वो इलेक्ट्रोफाइल उसको अटैक कर सकता है, अदरवाइज इट कैन नॉट अटैक। इज इट वेरी क्लियर नाउ? पॉइंट नंबर 2, the OH group in phenol ring is the OH group in phenol is ring activating and ortho or para directing मतलब आपके सब प्रोडक्ट्स कहाँ जाएंगे? सारे न्यूक्लियोफाइल्स, टेल मी। Sorry, all the electrophiles will go either to the ortho position or it will go to the para position. दोनों statement का meaning समझ में आ गया? Means of phenol is a nucleophile. You are going to attack the electrophiles, and whatever the electrophiles will be there, it will go to the position of ortho and para with respect to OH group. ठीक है? Can you repeat second definition? OH group in phenol is ring activating and ortho or para directing group. Okay, so first reaction, just pay attention, don't write anything. We will write down your halogenation of phenol. Tell me what is halogenation? Addition of halogen, correct? Phenol can react with the bromine water. ये देखो reaction देखो मेरा, this is my phenol. It is reacting with the bromine water, so 3 bromines I am going to take here.
एंड इट शुड बी इन द डाइल्यूटेड फॉर्म, तो वाटर भी रहता है उसके अंदर, ब्रोमीन वाटर। अभी ये जो आपका ब्रोमीन है किधर जाएगा पता है, ये देखो यहाँ पे एक एच है, ऑर्थो, पैरा, ऑर्थो, ठीक है। तीनों एच को रिप्लेस कौन करेगा, तीन ब्रोमीन। सो यू विल गेट हियर that is OH, one Br will go here, second one will go here, third one will go here। अभी जो तीन H निकला वो किसके साथ जाएगा, टोटल 6 ब्रोमीन है ना, तो 3 ब्रोमीन बचा है, it will form 3 HBr। clear? This is called as 2,4,6 ट्राई ब्रोमो। ब्रोमोफिनॉल। समझा, एकदम इजी रिएक्शन है। देखो वापस से मैं बोलती हूँ, halogenation, if the reaction is carried out in the aqueous bromine, or it is also called as bromine water, ठीक है। so chlorine will also react in the same way। क्या हो जाएगा अगर मैंने क्लोरीन दिया तो 2,4,6 ट्राइक्लोरोफिनॉल आएगा, so it will react in the same way। so it is giving you this reaction। so 3 2 the 6 ब्रोमीन था, तो 3 ब्रोमीन इधर आ गया और 3 ब्रोमीन इसके साथ निकल गया, so it is giving you 2,4,6 ट्राइब्रोमोफिनॉल। clear? first reaction is very very clear। अभी आपको सेम रिएक्शन लिखनी है विद द क्लोरीन, so I will write down the question here, you have to complete that। so I will write down OH, this is your phenol, ठीक है। अभी एग्जाम में आपको बैलेंस करके नहीं देंगे, they will give you chlorine in presence of water। तो आप क्या करने वाले हो उधर, 3 क्लोरीन लगा के 2,4,6 ट्राइक्लोरोफिनॉल लिखोगे, ठीक है। बट अभी क्या बोला है, इफ योर फिनॉल इज treated with bromine, sorry हाँ इधर प्लस है, bromine, if your phenol is treated with bromine but instead of water, if I'm going to use a different solvent called as carbon disulfide or carbon tetrachloride, or I can also use chloroform, ये अगर ऐसा solvent यूज किया, ठीक है, तो मेरा जो ब्रोमीन है वो कैसे जाएगा, अलग अलग कंपाउंड में, एक बार ऑर्थो पे जाएगा, एक बार पैरा पे जाएगा। सो आई एम गोइंग टू गेट हियर अ मिक्सचर ऑफ ऑर्थो ब्रोमोफिनॉल एंड पैरा ब्रोमोफिनॉल, मतलब 2 ब्रोमोफिनॉल और दूसरा प्रोडक्ट आएगा, हम लोग को मिक्सचर मिलेगा, ठीक है। सो आई विल गेट हियर Br एट द पैरा पोजिशन प्लस 2 HBr। समझा, सॉरी इधर ये आएगा, क्लियर हो गया। तो दिस इज कॉल्ड एज 2- bromophenol and this is written as 4-bromophenol। clear? देखो रिएजेंट डिफरेंट है, अगर मैंने ब्रोमीन वाटर लिया तो 2,4,6, लेकिन अगर मैंने ब्रोमीन के साथ इफ आई चेंज द रिएजेंट इट विल गिव यू द मिक्सचर ऑफ दीज टू। सो विच वन विल बी द मेजर, हमेशा पैरा वाला ही मेजर होता है, तो दिस इज योर मेजर प्रोडक्ट एंड दिस विल बी योर माइनर प्रोडक्ट। क्लियर? फर्स्ट रिएक्शन इज वेरी वेरी क्लियर टू एवरीबडी, ठीक Yes, है। ma'am. लिखो, यस, राइट डाउन दिस हेलोजिनेशन ऑफ फिनॉल, ये लिखो पटक से, फिनॉल प्लस ब्रोमीन वाटर, इसको क्या बोलते हैं, इफ यू वांट यू कैन राइट डाउन योर ब्रोमीन वाटर। देखने का ठीक से रिएजेंट के क्या हो रहा है, ब्रोमीन वाटर दे रहा है तो 2,4,6 लिखने का, फिर दे विल गिव यू CH2 या फिर क्लोरोफॉर्म और एल्स कार्बन टेट्राक्लोराइड, यानी ऑर्गेनिक सॉल्वेंट। तो हम लोग को एक ऑर्थोब्रोमो एक पैराब्रोमो, पैरा विल बी ऑलवेज मेजर, ऑर्थो विल बी ऑलवेज माइनर। कुछ भी नहीं समझेगा तो पूछो, हाँ बच्चों, डोंट हेजिटेट। इन एग्जाम दे आर नॉट गोइंग टू गिव यू बैलेंसिंग, वो अपने को करने का, और ये पूछते नहीं है कभी कभार, दे विल जस्ट राइट डाउन द मेन प्रोडक्ट 2,4,6 ट्राइब्रोमोफिनॉल। फिनॉल के 5 रिएक्शंस है, यस। I'll take a lecture till 6:45, चलेगा ना, मैंने 15 मिनट लेट स्टार्ट किया है ना, तो I will take 15 minutes, हाँ सॉरी, आज एक दिन। डन बच्चों, दिस पेज, Yes, ma'am. शुड आई टर्न? चलो ठीक है, अभी ये कंप्लीट करो रिएक्शन क्लोरीन वाला,
विल यू बी एबल टू कंप्लीट? ब्रोमीन की जगह क्या लगाएंगे? तीनों जगह पर क्लोरीन. दिस इज कॉल्ड एज क्लोरीन वाटर. शुड आई राइट डाउन और यू विल अंडरस्टैंड? फिनॉल इधर आया, क्लोरो, क्लोरो, क्लोरो. नाम क्या आएगा इसका? +3 HCl. व्हाट विल बी द नेम? 2,4,6. 2 कैसे? ये देखो यहाँ से स्टार्ट करेंगे ना नंबरिंग. 1 2 3 4 5 6. So it is 2,4,6 ट्राइक्लोरोफिनॉल. और ये ऑर्थो भी बोलते हैं इसको, ऑर्थो ब्रोमोफिनॉल और पैरा ब्रोमोफिनॉल. सॉरी, मैं यहाँ पे लिखना भूल गई. ये लो टेम्परेचर पे भी होता है. दिस इज एट द लो टेम्परेचर. सब एरो के ऊपर ही है. All these are on arrow. If you want, you can write it like this also. Okay, either CCl4 or CH2 or CHCl3 at low temperature. If you want, you can write it like this. Instead of writing ऐसे ऊपर नीचे, एक ही लाइन में ऐसे भी लिख सकते हो. CCl4 CH2 carbon disulfide. CHCl3 is called as chloroform. Kindly let me know if you're done with the writing. Okay. तो हेलोजनेशन सबको समझ आ गया? चलो अभी एक और हो सकता है अपना नाइट्रेशन. ठीक है, 2 reactions can be done wait today. ना. Okay, निश्चिल. Okay. चलो प्रांजल मैडम, सिर्फ आपके लिए इतना टाइम नहीं रुक सकते हम लोग. नेक्स्ट रिएक्शन इज नाइट्रेशन ऑफ फिनॉल्स. ठीक है, टेल मी व्हाट इज नाइट्रेशन. अभी तो ऑलरेडी आपने बहुत बार किया है. सो नाइट्रेशन ऑफ फिनॉल. नाइट्रेशन मीन्स एडिशन ऑफ नाइट्रो ग्रुप. ठीक है, एडिशन ऑफ नाइट्रो ग्रुप. एडिशन ऑफ नाइट्रो ग्रुप. ठीक है, अभी इसके भी दो कंडीशन है. वन इज विद द डाइल्यूटेड HNO3 at low temperature and one is at the by using concentrated HNO3 at the higher temperature. तो पहले मैं आपको सिखाती हूँ with the high temperature. ठीक है, so this is my phenol. I will take here concentrated nitric acid, HONO2. This is HNO3, yes or no? I will write down here concentrated. इसको क्या बोलते हैं? Mixture of concentrated HNO3 and concentrated H2SO4 nitrating mixture. ठीक है,
So ये देखो, यहाँ पे भी H है, यहाँ पे भी H है, यहाँ पे भी H है. What it will do? It will remove all these H and forms OH. One nitro will go here, second one will go here, third one will go here, plus H2O. This is called as 2,4,6 trinitrophenol. Its commercial name is picric acid. Picric acid is exactly like your turmeric powder, दिखता भी वैसे same exactly है, okay? And it is used in the explosive. Explosive मतलब वो बड़े वाले नहीं, पटाखों वगैरह में use होता है as a picric acid. And it is also giving you a confirmatory test for the presence of potassium. ये हो गया with the concentrated HNO3. If I'm going to use my phenol with the diluted nitric acid, this is my phenol, and I'm going to treat it with diluted nitric acid, HNO2, and I'm going to use here a low temperature. ठीक है? एक तो क्या है? First of all, it is diluted. I will write on here diluted nitric acid and low temperature. So you will get here again a mixture. ठीक है? Condition change, product change. You will get orthonitrophenol. Second one you will get here para-nitrophenol. ठीक है? Plus you can write down H2O. So ortho लिखो या फिर 2-nitrophenol you can write down. So it is 2-nitrophenol. And this is called as 4-nitrophenol. Which one is major? Para will be major. Ortho will be minor product. Clear? Second reaction. So when you're going to Yes, use ma'am. concentrated 2,4,6, हम लोगों ने diluted use किया और low temperature use किया, तो you will get the mixture of ortho and para. ठीक है? लिखो चलो. Copy down this. Nitration of phenol. Okay, this side is done ना बच्चों. 2,4,6 trinitrophenol. Right hand side पे जाए. Should I go? Yes, ma'am. लिखो. ये तो बहुत इजी है, अभी समझ गया ना? This is nitric acid only. तो कैसे निकाला आपने water? When water will go from here, और इधर से HOH क्या बनाएगा? Water H2O. So इसको ortho भी लिख सकते हो. If you want, you can write down ortho nitrophenol. But ortho और para meta किसमें नहीं आता है? IUPAC में नहीं आता है. And O should be small, P should be small. Para nitrophenol. Whatever you want, you can write it. अभी इसके बाद है सल्फोनेशन, फिर रिमर-टिमन रिएक्शन एंड कोलबेज रिएक्शन. अरे 6-7, अरे बहुत सारे रिएक्शन है, सॉरी 8 रिएक्शन है. आई एम सो सॉरी, मुझे लगा 5 है. Any doubts so far? Any questions? I can teach you in American accent also.
ओके समझ गए यहाँ तक सबको, कोई कंफ्यूजन नहीं है? क्लियर है मैम। ओके अभी एक छोटा सा सल्फोनेशन सिखा दूं, 5 मिनट में हो जाएगा, ठीक है? बाकी के रिएक्शंस नेक्स्ट वीक करेंगे। अभी सल्फोनेशन देखो आप लोग ही, और मुझे बताओ व्हाट इज हैपनिंग। थर्ड है ना ये? हाँ थर्ड, सल्फोनेशन ऑफ phenol. Sulfonation means addition of SO3H group. इसको बोलते हैं which group? Sulfonic group. ठीक है? Now you only see and let me know what exactly is happening. I will take here phenol. ठीक है? देखो हाँ, यहाँ पे भी क्या लिया है? H2SO4 लिया है, yes or no? Is it your H2SO4? Temperature 293 Kelvin. Next side पर I have taken the same thing, HOSO3H, that is sulfuric acid. Temperature is 373 Kelvin. तो 293 Kelvin लेंगे ना तो हम लोग को क्या मिलेगा? ये देखो, OH SO3H ऑर्थो, और इधर आ जाएगा पैरा। इसमें 246 वाला नहीं मिलता है, ठीक है? इसमें हम लोग को क्या मिलता है? सिर्फ ऑर्थो एंड पैरा। समझा? इसका नाम क्या आएगा? इट इज 1,2, तो 2 हाइड्रोक्सी बेंजीन सल्फोनिक एसिड। इसका नाम क्या है? 2 हाइड्रोक्सी बेंजीन सल्फोनिक एसिड। समझा? इसका नाम बोलो। अभी देखो, व्हेन यू आर हैविंग एसिड एंड व्हेन यू आर हैविंग OH ग्रुप, किसको प्रेफरेंस मिलता है? एसिड को ना। सो इट इज 1 2 3 4। क्या लिखेंगे? 4 हाइड्रोक्सी बेंजीन सल्फोनिक एसिड। क्लियर? सल्फोनेशन बच्चों? So if you'll see change in the Yes, ma'am. temperature, yes, if you'll see change in the temperature, होता कुछ नहीं है, सभी जगह से खाली अपने को वाटर निकालना है। If you want, you can write on plus H2O. Here also plus H2O, पर बाय प्रोडक्ट को कोई पूछता नहीं है ऑर्गेनिक में, ठीक है? Write down this, and for today we will stop this much. Sulfonation of phenol. Just let me know if you have any question, and if you are done, please write down done in the chat box. ये समझा? इसको और क्या बोल सकते हैं? ऑर्थोफिनॉल सल्फोनिक एसिड, ऑर्थोफिनॉल सल्फोनिक एसिड भी बोल सकते हैं, पैराफिनॉल सल्फोनिक एसिड, बट दिस इज द बेस्ट थिंग, 1,2 हाइड्रोक्सी बेंजीन सल्फोनिक एसिड। ओके ठीक है, हो गया ना सबका? अभी खाली नेक्स्ट रिएक्शन का नाम लिख के रखो, रीमर टीमन रिएक्शन। कुछ लोग इसको रीमर टाइमन भी बोलते हैं। टाइमन ने उसका नाम था, उसके मम्मी पापा ने उसका नाम टीमन रखा था, सब लोग ने उसको टाइमन टाइमन बोल के। एक गैटरमैन भी है, उसको सब लोग गटर गटर बोलते रहते हैं बेचारे को, ठीक है? सो दिस इज रीमर टीमन रिएक्शन, ठीक है?
this we will do in the next lecture. Any doubts for today's lecture, बच्चों? Any questions? Give me a quick yes Ma'am, into the clear chat है. box. Is it very clear? आज का सब जो भी सिखाया वो a very quick yes into a chat box. Okay. ठीक है, प्लीज कीप ऑन स्टडिंग क्योंकि नेक्स्ट वीक में तो डेफिनेटली ये चैप्टर हो जाएगा, तो हम लोग उसका टेस्ट लगाएंगे. ठीक है, ओके. मैम नेक्स्ट वीक से चलो. क्लास में ना? हाँ, क्लास में. क्लास है क्या ऑफलाइन? हाँ मैम, 20th अगस्त से सर ने बोला था. अच्छा, अरे वाह, तो फिर बहुत, फिर तो मैं तुम लोग की मस्त पिटाई कर सकती हूँ. बहुत सताया तुम लोग ने मेरे को ऑनलाइन. कैमरा लगाओ, कैमरा लगाओ. अभी तो तुम लोग गए, अभी तो सोच ही लो, तुम लोग उल्टे गिनती चालू कर दो तुम लोग. यस, अच्छी खबर भी. ठीक है, आई एम गोइंग टू चेक योर बुक्स ऑल्सो. इतना सारा जो मैंने लिखाया है, होपफुली सबने अच्छे से लिखा है. और किसी को कुछ डाउट रहेगा तो प्रांजल को पूछ लेना. प्रांजल तो इतना आराम से लिखती है 3 घंटा. ठीक है, चलो, बाय बाय, टेक केयर एवरीबॉडी. See you in Bye, class. miss. Bye, miss. If it Thank is you, going Bye, miss. to ma'am. start, yeah, welcome. Bye bye. Take care. Bye. Thank you.